Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter of geography, chapter number 3, Motions of the Earth. Before starting the chapter, let's have a quick view of the important things which we will discuss in this chapter. First one is about the movement of the Earth, rotation and revolution. Second one, how the day and night occur. Third one, why we have different seasons. Students, when we observe the sky, the sun, moon and the stars appears to be changing their position. जब हम sky को देखते हैं, हम sun, moon and stars appear to be changing their position. वो अपनी position को change करते हुए दिखाई देते हैं. This is due to the movement of the earth. ऐसा क्यों होता है? Due to the movement of the earth. The earth, like all the other planets in the solar system, has two kinds of motion, rotation and revolution. Earth spins on its axis and moves around the sun along a fixed path called orbit. So student, what is orbit? क्या है orbit? A fixed path on which the earth revolves around the sun is known as orbit. एक fixed path means रास्ता, एक fixed path जिस पर earth revolve around the sun के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उस fixed path को हम कहते हैं orbit. Now the earth axis. What is an axis? Axis is an imaginary line which joins the North Pole and the South Pole. The axis is tilted at an angle of 66.5 degrees with the plane of the Earth's orbit. Axis क्या है? Axis is again an imaginary line. Axis भी एक imaginary line है which join the North Pole and South Pole. जो किसको join करती है? North Pole and South Pole को. And Earth is tilted at the axis of 66.5 degree. Earth का जो axis है वो tilted है. Tilted means झुका हुआ है 66.5 degree पे. The tilt is called the inclination of the Earth axis. इस Earth की जो tilt है उसको हम कहते हैं inclination of the Earth axis. Now student, a diagram is given here. As you can see, the axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit. Now as you can see, a line is given here which is joining the North Pole and South Pole. North Pole और South Pole को join करती एक line दिख रही है. This is the Earth axis and as you can see, an angle is also given here of 66.5 degree. एक एंगल दिखाई दे रहा है आपको 66.5 डिग्री बनाता है. तो दिस इज द अर्थ इज टिल्टेड. अर्थ इतनी टिल्ट है, अर्थ का एक्सिस है. ठीक है. नाउ डू यू नो इन 1530 Nicholas Copernicus, a Polish astronomer, first wrote in his book that the earth spins daily on its axis. 1530 में निकोलस कॉपर्निकस एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में मेंशन किया कि अर्थ स्पिन डेली ऑन इट्स एक्सिस, की अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे. ही ऑल्सो रोट दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन वंस एवरी ईयर टुगेदर विद द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है अदर प्लैनेट्स की तरह. Very few people believed him at that time because the general idea was that the sun goes around the earth. At that time उस समय very few people believed him. बहुत कम लोगों ने उन पे believe किया because at that time the common belief, general idea, लोगों का commonly मानना क्या था? Sun goes around the earth, कि sun earth के चारों तरफ चक्कर लगाता है. Now come to the next point. Effect of the inclination of the earth axis. Now student, what are the effect of inclination of the earth axis? If the earth axis was vertical to the plane of the orbit,
any place in the world have received the sun rays in the same way all around the year. कि अगर अर्थ का जो एक्सिस है वो वर्टिकल होगा तो क्या कंडीशन होगी, एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी प्लेस हो, देन रिसीव द सनरेज इन सेम वे, उसे सनरेज कैसे रिसीव होगी, सेम वे, एक ही तरह से रिसीव होगी ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल भर. दस डे एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल लेंथ. तब क्या कंडीशन होगी, जब एक जैसी सनरेज रिसीव हो रही हैं तो डे एंड नाइट वुड बी ऑफ इक्वल लेंथ. The earth axis is always inclined in the same direction and in the same angle. Because of this inclination of the earth's axis, the day and night are not of the same length. During summers, days are longer than nights, and during winter, nights are longer than days. Now students, because of earth axis, earth is always inclined in the same direction. earth हमेशा एक ही direction में inclined है and same angle पे है. because of this inclination, इस inclination की वजह से of the earth axis, the days and nights are not of same length. day और night same length के नहीं होते हैं. ड्यूरिंग समर, आपने देखा होगा समर सीजन में डेज आर लॉन्गर देन नाइट, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं. एंड ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और विंटर सीजन में नाइट्स लॉन्गर होती हैं और डेज क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं. सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन मीन्स होता है प्रकाश का स्रोत, जहाँ से रोशनी मिलती है. द प्लेस वेयर अ लाइट कम्स फ्रॉम. Now circle of illumination. What is the meaning of circle of illumination? A line or circle which divides the day from night on the earth is called circle of illumination. Circle of illumination क्या है, एक imaginary line है which divides the earth from, separates the earth from day और नाइट, जो दिन और रात को अर्थ में डिवाइड, अर्थ को दिन और रात में डिवाइड करती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट डिवाइड्स द लिट अप पोर्शन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्कर पोजीशन. कि अर्थ का जो पोजीशन लाइट में है उस पोर्शन को और जो डार्कर पोर्शन है उस पोर्शन को सेपरेट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. It does not coincide with the earth axis. Circle of illumination earth axis के साथ coincide नहीं होती है. coincide means होता है उसके सेम, उसके जैसी नहीं है, उसके इक्वल नहीं है. One of the poles experience day or night. Circle of illumination में one of the pole experience day or night. The earth never changes its axial tilt. earth अपना axial tilt कभी भी change नहीं करता है. The earth never stop rotating. earth कभी भी rotate करना बंद नहीं करता. Otherwise it would not experience day or night at all. नहीं तो दिन और रात नहीं बनेंगे अगर earth rotate करना stop कर देगा. Now students, a diagram is given here of circle of illumination. As you can see here, in the center of the circle, a line is given in which circle of illumination is written. And by seeing this diagram, we can easily see one portion is the lighter one and another one is darker one. एक portion क्या है, light है और दूसरा dark shaded है. The lighter portion shows day. Light वाला portion हमें क्या indicate कर रहा है, इस area में क्या है, day है. And the darker one shows नाइट, और जो जिस पोर्शन में डार्क शेड है वो क्या शो कर रहा है, नाइट. द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ, कि ये जो लाइन है सेंटर में वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लाइट पोर्शन एंड द डार्कर पोर्शन, डे एंड नाइट में. दिस लाइन इज नोन एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. इस लाइन को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या है? The spinning movement of the earth on its own axis is called rotation. The spinning movement, spin करना means होता है घूमना.
द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो स्पिनिंग मूवमेंट है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे, दैट इज नोन एज रोटेशन, कि अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमना, दैट इज नोन एज रोटेशन. तो व्हाट इज रोटेशन? इन अनदर वर्ड्स वी कैन से द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. अर्थ मूव करता है कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, एंड इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एंड अर्थ को कितना टाइम लगता है? हाउ मच टाइम अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? 24 hours. Earth take 24 hours to complete one rotation, and we consider this time to be 1 day. और हम इस 1 day में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours. और हम इस 24 hours को क्या कंसिडर करते हैं? 1 day. Now students, a question arise कि what would you think happen if the earth stop rotating? कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे तो what would happen? So student, if the earth stops rotating, then 1/2 of the earth would have received permanent daylight. तो क्या होगा अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया कि 1/2 ऑफ द अर्थ का जो एक हाफ पोर्शन है एक्सपीरियंस डे लाइट, वहाँ पे हमेशा डे लाइट होगी, वहाँ पे डे होगा, रोशनी होगी, एंड इट्स बिकेम वेरी हॉट. और वो एरिया कैसा हो जाएगा? वेरी हॉट. वाइल द अदर हाफ, जबकि दूसरा एरिया वुड हैव परमानेंट नाइट, वहाँ पे हमेशा क्या होगा? जब सनलाइट रिसीव नहीं हो रही तो इट विल परमानेंट नाइट, वहाँ हमेशा नाइट रहेगी, एंड कॉज फ्रीजिंग, और वहाँ पे ठंड रहेगी, फ्रीज होगा, फ्रीजिंग कंडीशंस. नाउ स्टूडेंट, कैन यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट इन सच कंडीशन? क्या आप सोचते हो कि ऐसी कंडीशन में लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी. अ ब्लू बॉक्स इज गिवन हियर स्टूडेंट, इन विच अ एक्टिविटी इज गिवन. With the help of activity, we can easily understand the position of the earth. Darken your room and keep a globe in front of lamp. And globe stands for the earth while the lamp stands for sun. Now with the help of activity, you will understand the things clearly. Darken your room. अपने रूम को डार्कन कर लीजिए, अंधेरा कर लीजिए. And keep a globe on the lamp. कि एक टेबल पे ग्लोब रखिए एंड फ्रंट ऑफ लैम्प, और उसी के सामने एक लैम्प हमें जलाना है. ग्लोब स्टैंड फॉर अर्थ. ग्लोब किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? अर्थ को. एंड लैम्प स्टैंड फॉर सन. और जो लैम्प हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज लैम्प प्रोवाइड अस लाइट, लैम्प से हम लाइट ले रहे हैं, तो हमें अर्थ को लाइट कौन प्रोवाइड करता है? सन. तो जो लैम्प है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को. व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, इट लाइट्स फॉल ऑन द ग्लोब. जब हम लैम्प को ऑन करेंगे तो उसकी लाइट डायरेक्ट किस पर जाएगी? ग्लोब पे. यू विल नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट फेसेस द लाइट इज लिट अप while the opposite side is in darkness. कि जब हम लैम्प को लाइट करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ग्लोब का पोर्शन सामने है वहाँ पे वो पोर्शन क्या कर रहा है? फेसेस द लाइट, वहाँ पे लाइट मिल रही है और वहाँ पे डे होगा. while the opposite side, जबकि जो अपोजिट पोर्शन है वहाँ पे क्या होगी? डार्कनेस. Mark a place A on that half of the globe which is in darkness. कि जो एरिया डार्कनेस में है वहाँ पर हम एक पोजीशन, एक किसी भी जगह पर A लिख देंगे, A पोजीशन मार्क कर देंगे. नाउ स्टार्ट रोटेटिंग द ग्लोब. और धीरे धीरे अब हम ग्लोब को रोटेट करना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. प्लेस A विल स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स द लाइट. और जैसे जैसे हम उसे रोटेट करते हैं, प्लेस A धीरे धीरे लाइट की तरफ आने लगती है. At the point where it comes out of the shadow, it gets diffused light. और धीरे धीरे यहाँ पे हल्की सी रोशनी मिलती है, डिफ्यूज लाइट मिल रही है. At that point we can say that it is down at A. और इस पोजीशन पे हम कहते हैं जहाँ पे हल्की लाइट मिलनी शुरू होती है इस डार्कन पोजीशन को, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन है? डाउन. रोटेट द ग्लोब फर्दर. अब हम और ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं, घुमाते हैं. Then the place A now experience sunrise. अब जो डायरेक्ट रेज है वो A प्लेस पर आ रही हैं. कंटिन्यू रोटेटिंग द ग्लोब. धीरे धीरे और ग्लोब को घुमाएंगे.
प्लेस ए विल नाउ डायरेक्टली फेस द सनलाइट। अब इस पोजीशन में जो ए प्लेस है वह डायरेक्टली सन के सामने है, लैम्प के सामने है। दिस मीन्स दैट इज नून एट ए। इस समय ए पोजीशन पे नून की कंडीशन है। ऑन फर्दर रोटेशन, और हम ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं। ए विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट। धीरे धीरे ए पोजीशन जो लाइट पर थी, जहाँ नून की कंडीशन थी, दिन की कंडीशन थी, हम और से मूव करते हैं टुवर्ड्स द डार्कनेस। अब हम घुमाते हैं तो ए पोजीशन डार्कनेस की तरफ वापस जाएगी। इट विल एक्सपीरियंस सनसेट। इस समय वहाँ पर क्या होगा? सनसेट। एट द पॉइंट वेयर इट इज अबाउट टू एंटर द शेडो, इट अगेन गेट डिफ्यूजिंग लाइट, सो इट विल नाउ dusk at A. When A reaches the position directly opposite to the light, it is midnight. और जैसे जैसे हम A पोजीशन वाली को घुमाते जाते हैं, A पोजीशन वापस से डार्कनेस में आ जाएगी एंड अगेन विल एक्सपीरियंस नाइट। वहाँ पे क्या होगी? मिडनाइट, अंधेरा होगा। Now with this experiment we clearly understand the circle of illumination. Effects of rotation. Rotation of the earth causes the following effects. What are the effect of rotation on the earth? अर्थ जो स्पिन करती है, रोटेट करती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट, occurrence ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट अकर, यानी दिन और रात जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सेकेंड पॉइंट, सनराइज होता है ईस्ट में एंड सन सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, विंड की जो डायरेक्शंस चेंज होती हैं, एंड ओशन करंट्स जो होते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। फ्लैटरिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल एंड बल्ज एट द इक्वेटर। कि अर्थ का, इफ़ यू विल सी द शेप ऑफ द अर्थ, दे आर फ्लैटर्ड एट द पोल। वो अर्थ पोल्स पे फ्लैटर्ड है, थोड़े से फ्लैट हैं, चपटे हैं। और एज वी सी टुवर्ड्स द इक्वेटर, और जैसे हम सेंटर में देखते हैं इक्वेटर, वेयर इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, और सेंटर में अर्थ का जो शेप है वो बल्ज है। अकरेंस ऑफ द टाइड्स ट्वाइस अ डे। इफेक्ट ऑफ रोटेशन का नेक्स्ट पॉइंट है टाइड्स अकर। जो ओशंस में टाइड्स आते हैं वो भी किसके कारण आते हैं? रोटेशन के कारण। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। गिव्स अस 24 आवर। रोटेशन का इफेक्ट क्या है? इट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एंड द हेवनली बॉडीज सीम्स टू बी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो अदर हेवनली बॉडीज होती है वो हमें कैसी दिखाई देती हैं? दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन दिस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट अर्थ एक्सिस, रोटेशन and the effects of rotation. In our next class, we will continue our chapter from revolution. I hope you understood the topics which we had discussed in this class. Thank you.